Hello, my dear student. Myself Amit Pandey, and I welcome you all in this online class. So, in last class, we already completed the concept of balanced and unbalanced force, and we discussed all this example about the balanced and unbalanced force. So, today we are going to start that what are the effect of balanced and unbalanced force. So, see here, I have shown here one example of that balanced force. Suppose these three persons are applying a force towards this direction, and again the three person from the other side applying the force in this direction. Now if the force means summation of force, or we can say that if the resultant force towards this direction is equals to the resultant force towards this direction, then we can say that the force or overall force is what? Balanced force. अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मान लीजिए कि ये तीन पर्सन अपनी फोर्स जो है इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, और ये जो तीन पर्सन है जो अदर साइड में अदर एंड पे खड़े हैं, अगर वो अपनी फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो अगर ये तीनों फोर्स मीन समेशन ऑफ ऑल दिस फोर्स थ्री फोर्स और यहाँ के जो समेशन है इन तीनों फोर्स का, अगर वो इक्वल होंगे तो हम कहेंगे द फोर्स इज बैलेंस्ड force. Okay, now come for the effect of balance force. Now see here, हमने यहाँ पर एक रबर बॉल लिया हुआ है, और in next step we are just squeezing a rubber ball between the palm of our hands. हम इसे प्रेस कर रहे हैं. Then what happen? जैसे हम इसको प्रेस करते हैं, जो इसकी शेप एंड साइज है वो चेंज हो जाती है. So can we say that if balanced force will apply, or we can simply say that अगर किसी बॉडी पर दोनों तरफ से अपोजिट साइड से अगर फोर्स लग रही है, तो जो बॉडी है वो अपनी शेप एंड साइज को चेंज कर पाता है. अच्छा, अगर हम इसे लीव करेंगे, अगर हम इसे स्क्विंच करना छोड़ देंगे, देन अगेन द बॉल विल टेक इट्स प्रीवियस शेप और साइज, जैसे पहले थी वो वैसे ही हो जाएगी. तो दिस काइंड ऑफ situations we considered as a temporary deformation. Okay, so we can simply say that by the application of force the shape and size of the body will change. Now one more example is given here for unbalanced force. Now see, the displacement, or we can say that the body is moving towards this direction. So what does it mean? It means that the overall force due to all these three persons is greater than the force applied by all these three persons. Suppose the force applied by all these three persons is, let it be FA, or the force applied by all these three persons is, let it be FB. So when the resultant force will moving in this direction, when FA is greater than FB, अगर FA बड़ा होगा FB से तो बॉडी हमारी इस डायरेक्शन में मूव करेगी. अगर FB बड़ी होगी, सपोज if FB is more than FA, then the body will move towards this direction. तो डिपेंड, जहां भी फोर्स ज़्यादा होगी बॉडी हमारी उसी डायरेक्शंस में मूव करेगी. सो what is the meaning of that unbalanced force? Means if the body will change its position, then the force is unbalanced force. मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर रखा है कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स होती है उसमें बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है, बट इन केस ऑफ बैलेंस्ड फोर्स बॉडी हमेशा उसी पॉइंट पर स्टिक रहती है. नाउ सी हियर द नेक्स्ट टॉपिक, Galileo's observation. So Galileo is the name of scientist, and he observed some phenomena naturally. So we are just going to see about its observation, and then we will see the laws that is given by Galileo. So let's start. Let me show the diagram first. Now see the first diagram. Now देखो गैलीलियो ने बोला क्या था कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है. सो दिस इज व्हाट इंक्लाइंड प्लेन. इंक्लाइंड क्यों बोला? क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट पर किसी एंगल से ये इंक्लाइंड है ना. अगर मान लीजिए कुछ ऐसा प्लेन है, सपोज कि ये हमारा सरफेस है
और ये बॉडी इस पे, ये रही सरफेस, और ये बॉडी इस पे इंक्लाइंड कर रही है। ओके, सो दिस इज और द एंगल जो है दैट इज थीटा। सो दैट काइंड ऑफ surface is called as inclined surface or inclined plane. Now, तो अगर इस inclined plane पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, then अगर वो up to down means if the displacement or the direction of the body is towards this side, अगर बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, up to down जा रही है, then the speed of the object will increases. तो बॉडी की जो स्पीड है वो इंक्रीज करेगी। ओके, नाउ what will the situation when the body will move from down to up? अगर बॉडी डाउन टू अप जाएगी like this one, अगर बॉडी ऊपर जा रही है, then क्या होगा? What about the speed? The speed will started to decrease. So these are the observation of Galileo. Galileo ने बताया था यही सारी चीजें कि अगर inclined plane पे ऑब्जेक्ट है तो अगर अप टू डाउन जाती है तो स्पीड इंक्रीज करेगी, और अगर डाउन टू अप जा रही है तो स्पीड डिक्रीज करेगी। ठीक है, नाउ लेट मी एक्सप्लेन वन मोर थिंग हियर कि अगर मान लीजिए कि बॉडी अप टू डाउन जा रही है, सो इट डजंट रिक्वायर अ सिंगल अमाउंट ऑफ फोर्स। मीन्स अगर हमें इसको मूव करनी है इन दिस केस, सो हमें यहाँ पे फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बॉडी जो है वो ऑटोमेटिक मूव करेगी विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू this point. Okay, so just remember all this concept, it will be helpful for the numerical problem कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पर प्लेस्ड है और वो अप टू डाउन मूव कर रही है, so the force required to move its position from one point to other point is zero. हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ अगर सेम कंडीशंस में अगर मैंने बोला कि is it required to move the body from this point to this point, और we can say that अगर बॉडी डाउन टू अप जा रही है तो क्या हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? सो द आंसर इज यस, इट रिक्वायर एक्सटर्नल फोर्सेस फॉर इट्स मूवमेंट फ्रॉम डाउन टू अप। अप डाउन टू अप जाने के लिए हमें से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, बट अप टू डाउन के लिए हमें से फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। नाउ एक और ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि गैलीलियो ने कहा कि अगर हमारे पास कोई प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, कुछ ऐसा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है ना, अगर उस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रख रखा है, देन द स्पीड विल बी कांस्टेंट स्पीड। अगर हम इसे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, इफ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज जीरो, तो जिस स्पीड से वो मूव कर रही है वो स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। वो यहाँ से इस पॉइंट तक अपनी एक कांस्टेंट और फिक्स्ड स्पीड पे मूव करेगा। ठीक है, और जैसे आप इस पे फोर्स लगाएंगे तो डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन कितनी है। सो बेस्ड ऑन द एक्सेलरेशन और नेचर ऑफ द फोर्स it will increase or decrease the velocity. Now the next topic is force and laws of motion. So this is the very important topic for exam point of view also or for the understanding point of view. जो भी कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के, मेन कॉन्सेप्ट हमारे इस टॉपिक से स्टार्ट होता है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. So before starting the concept of force and laws of motion, let me explain first what is the meaning of inertia. इनर्शिया का बहुत बड़ा रोल है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो समझिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया। होता क्या है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू कंटिन्यू इट्स रेस्ट पोजिशन और इट्स मूविंग पोजिशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी रेस्ट पोजिशन में, सपोज यहाँ पर एक बॉडी हमने रख रखा है और ये बॉडी एक रेस्ट पोजिशन पर है, तो जब तक हम इसे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे इट विल ट्राई टू रिमेन इन रेस्ट पोजिशन। अगर हम इसे हिंदी में बोलें तो इनर्शिया का मतलब होता है बॉडी के अंदर की एक सुस्ती। ठीक है, दैट इज व्हाट, कि अगर मान लीजिए कि आप बैठे हो और जब तक आपके बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, यू विल जस्ट कंटिन्यू योर बॉडी इन रेस्ट पोजिशन। अगर हमने यहाँ पे बॉल की बात करें, अगर ये बॉल किसी भी सरफेस पे हमने रख रखा है एंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल इज जीरो, so what are the conditions and what are the method for the movement of this ball? We have to apply a force on this ball for its movement or to change its speed or to change its position. अगर जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे ये बॉडी क्या ट्राई करेगी? इट विल ट्राई टू रिमेन इन द रेस्ट पोजिशन। दिस इज व्हाट इनर्शिया। सिंपल सा है कि अगर बॉडी रेस्ट पोजिशन पे है तो बॉडी रेस्ट पोजिशन पे ही रहेगी, अगर बॉडी
मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक हम उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। चलिए समझते हैं इसी बात को एक छोटे से एग्जांपल से। नाउ सी हियर, हमने क्या करा हुआ है सेटअप के अंदर, सी दिस सेटअप हियर। एक हमारे पास ग्लास है और ग्लास के ऊपर हमने एक कार्ड रख रखा है और कार्ड के ऊपर हमने कॉइन रखा हुआ है। नाउ वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस कार्ड। अब मुझे ये बताओ कि इनिशियली बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दिस कार्ड एंड दिस कॉइन इज इन रेस्ट कंडीशन, तो इसकी इनर्शिया क्या कहेगी? ड्यू टू ऑफ इनर्शिया इनसाइड द बॉडी। इनर्शिया जो होती है बॉडी के अंदर होती है, बॉडी की सुस्ती। ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द बॉडी both the coin and the card will try to remain in the rest position. Now we are applying the force on card. हमने जो फोर्स लगाया है, देखो ये जो फोर्स लगा रहे हैं अपने हैंड से वो कार्ड पे लगा रहे हैं, हमने फोर्स कॉइन पे नहीं लगाया। सो कार्ड विल चेंज इट्स पोजीशन बट ड्यू टू द inertia this coin will remain at this point so that it will go inside the glass. Now see the diagram. देखो क्या हुआ, सेम एज इट इज। ये जो कार्ड है वो तो मूव कर गई बट जो कॉइन थी यहाँ पर वो नीचे आ गई। अच्छा, ये कॉइन कॉइन मूव क्यों नहीं करा? बिकॉज वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द कार्ड नॉट ऑन द कॉइन। हमने कॉइन पे फोर्स नहीं लगाया और हमें जैसा पता है कि ड्यू टू ऑफ इनर्शिया द बॉडी विल कंटिन्यू इट्स रेस्ट पोजिशन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया था वो कार्ड पे लगाया था, कॉइन पे नहीं लगाया था। इसीलिए ये कॉइन है तो इसी पॉइंट पर बट इसे कोई सपोर्ट नहीं मिला, सो दैट इट फेल डाउन इनसाइड द ग्लास। सो आई होप कि आपको समझ में आई होगी व्हाट इज इनर्शिया एंड व्हाट आर द कंडीशंस टू change the inertia of a body. So this all concept will use for the understanding of laws of motion. Now see here, some example is given here. Like inertia is classified in three types, that is inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. Means see here, a passenger standing in a bus leans backward when the bus start all the sudden। ठीक है, सिंपली क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप बस पे बैठे हो और एज बस विल स्टार्ट आपको एक जर्क लगती है बैक साइड में। तो व्हाई इट हैपेंस बिकॉज इनिशियली योर बॉडी वाज इन rest conditions and as the bus starts the position or the condition will break down due to the application of force by the bus so that we get a jerk on back side. So this is the condition of rest. Why we call it as a rest? Because initially the body was at rest condition when the bus is not started. Okay, so these are the example. Just go through all this example and try to understand the concept of inertia of rest. Now the next is inertia of motion. अगर बॉडी हमारी मोशन में है तो उसके साथ चेंजेस कैसे होंगे? सी हियर, अगर मान लीजिए कोई मूविंग बस है, यहाँ पर हमने एक जो बस ली थी इट इज़ व्हाट, रेस्ट बस लिया था। नाउ द बस इज मूविंग बस, हम उस मूविंग बस में बैठे हुए हैं और इनिशियली बस स्टॉप होती है, देन अगेन वी गेट सम काइंड ऑफ जर्क। तो क्या हुआ कि जब हम मोशन में थे तो अगेन आई एक्सप्लेन्ड हियर, मैंने आपको बताया कि वेन एवर द बॉडी इज इन मोशन इट विल ट्राई टू रिमेन इन मोशन until and unless external force is applied। तो हमारी जो बॉडी है वो मोशन में है बस के साथ, बट हमने जो फोर्स लगाया वो बस पे लगाई, हमने बस को स्टॉप किया, बट एज आवर बॉडी इज मूविंग सो दैट वी गेट सम अमाउंट ऑफ जर्क ऑन आवर बॉडी। दिस इज अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये सिंपल सा है कि अगर आप जिस भी पॉइंट पर जिस भी साइड में फोर्स लगाओगे बॉडी हमारी उसी डायरेक्शन पे जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने फोर्स इधर लगाया और बॉडी हमारी यहाँ है, हमने फोर्स ऐसा लगाया तो बॉडी इधर जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए ये रही बॉडी, हमने फोर्स यहाँ से लगाई है तो बॉडी कहाँ जाएगी? बॉडी इधर जाएगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, एंड दिस ऑल आर डिपेंड्स ऑन मास ऑल्सो। अगर बॉडी की मास ज़्यादा है तो उस पर फोर्स हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा, अगर बॉडी की मास कम है तो फोर्स हमें कम लगाना पड़ेगा टू गेन द सेम स्पीड। Now come for the Newton first law of motion. So this is the first law of motion. समझते हैं क्या है फर्स्ट लॉ के अंदर। Now see here, a body continue to be in state of rest or uniform motion along a straight line unless an external force acted upon it. सेम बात मैंने आपको ऑलरेडी
एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो अपनी रेस्ट की जो कंडीशन है वो कंटिन्यू करेगी until and unless an external force applied on the body, and this is the Newton first law of motion. Again I am repeating, Newton first law के अंदर क्या बताया गया है कि a body will continue its rest condition or its moving conditions until and unless an external force is applied. जब तक हम एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक वो बॉडी अपनी जो ओरिजिनल अपनी जो पोजीशन है अपनी जो कंडीशन है उसको कंटिन्यू करेगी. दैट कंडीशन might be rest condition or moving condition, and this law is also called as law of inertia. इसी लॉ को हम मीन्स न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू द स्टेटमेंट. एग्जाम में कई बार आता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो स्टेटमेंट में तो आपको ये लिखनी है एंड एग्जाम्पल्स में कुछ एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे बॉडी हमारी रेस्ट पे थी और ड्यू टू अ फोर्स कैसे वो चेंज हो गई उसकी पोजीशन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मोमेंटम. नाउ सी हियर, मोमेंटम. अब देखो यहाँ पे व्हाट इज मोमेंटम. द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ अ बॉडी. अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी है हमारी और वो ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, अगर हमें इस बॉडी को स्टॉप करनी है तो क्या करना होगा, हमें एक अपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी. ठीक है, अगर मान लीजिए बॉडी इधर मूव कर रही है ड्यू टू 2 न्यूटन फोर्स, तो हमें अपोजिट में भी 2 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा सो दैट द बॉडी गेट व्हाट, स्टॉप. नाउ टेल मी वन मोर थिंग कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है जिसकी मास 2 kg है, ठीक है, और एक और बॉडी है जिसकी मास 3 kg है. ठीक है, ये बॉडी की मास के बारे में बात कर रहे हैं हम. अच्छा, हमने इस बॉडी पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और जो फोर्स है वो 2 न्यूटन का है, और यहाँ पर भी हमने एक फोर्स लगाया बॉडी पे जो कि 2 न्यूटन का फोर्स है. न्यूटन इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, सबको पता होगा. ठीक है, देखो हमने करा क्या है, जो फोर्स लगाया है हमने दोनों बॉडी पे वो इक्वल फोर्स लगाई है हमने और डायरेक्शन भी इक्वल है, बट चेंजेस क्या है, उसकी मास पे चेंजेस है. द फर्स्ट बॉडी इज ऑफ 2 kg and the second body is of 3 kg. Then tell me, what about the velocity? If the velocity of body first is v1 and if the velocity of body second is v2, so tell me what is the relation between v1 and v2? So can we say that this v1 is greater than v2? जो v1 होगी वो v2 से ज़्यादा होगी. Why this differences create as we have already applied the same force? हमने यहाँ पे सेम फोर्स लगाया है फिर भी वेलोसिटी में चेंजेस क्यों आ रहा है? दिस इज ड्यू टू द चेंज इन द मास. सो कैन वी से दैट द फोर्स एंड द मास इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी. मीन्स अगर बॉडी में फोर्स हमने ज़्यादा लगाया है तो वेलोसिटी उस पर डिपेंड करेगी. मीन्स इफ फोर्स इज मोर देन वेलोसिटी विल बी मोर. नाउ इफ द मास इज मोर, if the mass of the body is more, what about the velocity? The velocity with the same force or equal force will be less, which I have explained here in these two example. ठीक है, तो अब ये जो चेंजेस आ रही हैं हम कह सकते हैं दिस इज ड्यू टू ऑफ मोमेंटम इनसाइड द बॉडी. बॉडी के अंदर एक मोमेंटम होती है एंड दैट मोमेंटम इज डिपेंड अपॉन द फोर्स. So simply we can say that P is the momentum here, P is the momentum, and that is equals to mass into velocity, where m is the mass and v is the velocity, which is in meter per second and mass is in kg. So if P is equals to m into v, then what about its SI unit? So the SI unit of mass is kg and the SI unit of velocity is meter per second. So just combine these both the SI units, so it is kg meter and this second is in denominator, so make it in the numerator, so it is per second minus 1. So this is the SI unit of momentum, kg meter per second. See here it is written kg meter per second. So I hope you understand the concept of momentum. Momentum क्या है
किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करती है। अगर हमें वेलोसिटी को इंक्रीज करना है तो हमें किस चीज़ को इंक्रीज करनी होगी। अगर बॉडी में मास ज़्यादा है तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इट्स वेलोसिटी, फोर्स पे क्या इफेक्ट करेगा। सो दिस ऑल आर व्हाट, दिस ऑल आर द मोमेंटम। Okay, so now come for the next law, that is Newton second law of motion. Now see what is Newton's second law of motion. It states that the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied in the same direction. Now let me explain with the diagram or with the explanations or with the expression कि जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा एक बात समझो कि जहाँ पर रेट की बात आ गई, अगर जहाँ भी रेट लिखी हो इट मीन्स दैट वी आर डीलिंग विद द टाइम। ठीक है, तो जो भी चेंज इन मोमेंटम आ रही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अगर मान लीजिए कि बॉडी की इनिशियल स्पीड u है और फाइनल स्पीड v है, सो व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम इज m इंटू v, सो द इनिशियल मोमेंटम इज m इंटू u। भाई इनिशियल स्पीड तो u है, सो इफ p1 if p1 is the initial momentum then p1 is what, m into u। अच्छा अगर p2 हमारा फाइनल मोमेंटम है तो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर फाइनल मोमेंटम, दैट इज m into v। अगेन आई एम रिपीटिंग, u हमारी बॉडी की इनिशियल स्पीड है और v हमारी बॉडी की फाइनल स्पीड है। तो एज पर इनिशियल स्पीड व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, यहां से हमें इनिशियल मोमेंटम मिल जाएगा p1 दैट इज m into u, ये u है। and what is p2, p2 is m into v। then what is change in momentum, change in momentum जो हो जाएगी वो फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा जो चेंज होगी वो फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होती है। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होती है। व्हाट इज चेंज इन स्पीड सो फाइनल स्पीड माइनस फाइनल इनिशियल स्पीड होती है। व्हाट इज चेंज इन एक्सेलरेशन सो फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन। तो जब भी मैं चेंज की बात करूं तो फाइनल से हमेशा इनिशियल को आप सब्ट्रैक्ट करोगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज चेंज इन द मोमेंटम। अब ये कह रहा है इसके अंदर कि ये जो मोमेंटम का जो चेंज है रेट के साथ मीन्स टाइम के साथ, तो इसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। डायरेक्टली मतलब क्या हो गया कि अगर हम किसी एक फैक्टर को इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरी फैक्टर इंक्रीज करेगी। अगर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो अगर एक फैक्टर को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी फैक्टर डिक्रीज करेगी। तो अगर हम चेंज इन मोमेंटम मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं बॉडी पे। अगर हमने बॉडी पे फोर्स ज़्यादा अप्लाई करा है तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो ज़्यादा होगी, और अगर हमने फोर्स कम अप्लाई करी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगी, कम होगी। So I hope you have understand what is the meaning of rate of change of momentum, what is the formula for finding initial momentum, and what is the formula for finding final momentum. Okay, so see here, initial momentum मैंने आपको बता दिया that is m into u, final momentum m into v। so change of momentum is what, m into v minus u, m कॉमन है तो हमने कॉमन निकाल दिया, that is m ब्रैकेट में v minus u। देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगी, इसको t से डिवाइड कर दीजिए। तो देखो t नीचे आ गया, इट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा v माइनस यू अपॉन टी क्या हो गई, ये जो टर्म यहाँ पे आया है v माइनस यू अपॉन टी, इट इज एक्सेलरेशन। हमने अभी लास्ट वाले चैप्टर में देखा है a इज व्हाट, v माइनस यू अपॉन टी। सो इन प्लेस ऑफ v माइनस यू अपॉन टी कैन वी राइट m इंटू ए। भैया a जो है a इज v माइनस यू अपॉन टी, तो v माइनस यू अपॉन टी की जगह a लिख दीजिए। तो व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, m इंटू ए आ गया। So finally that rate of change of momentum is m into a, or we can write m into v minus u upon t। डिपेंड करता है क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दे रखा है या स्पीड दे रखी है। अगर क्वेश्चन में स्पीड दे रखे रहेगा तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, और अगर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया रहेगा सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। फाइन, so this is the Newton's second law of motion, means the rate of change of momentum is directly proportional to the external force applied on the body। ठीक है, so just leave up to this point, and in the next lecture I will explain Newton's third law or about its examples। so
leave up to this topic. Thank you and have a nice day.